Hello, everyone, and welcome to Edu Abroad, run by Harvard Cambridge alumni. I'm Radhya, and I welcome you to the first episode, maiden episode of the Study Abroad podcast with Dr. Swati Mishra. So, Dr. Swati Mishra is an alumna of MIT USA and Cambridge UK. She went abroad on a fully funded scholarship by the Government of India, which is none other than the prestigious Commonwealth Trust Scholarship. Upon returning, she taught as a professor at IIM Ahmedabad and IIM Lucknow and also founded Edu Abroad. She has worked with the Government of India as a consultant on numerous projects, and today she's a renowned international political consultant. So please put your hands together for Dr. Swati Mishra. So today's podcast is going to be about ma'am's journey and experience, not just as a study abroad student, but also as a counselor to numerous parents and students over the years. So with this, we are going to start with our series of questions that we have drafted for you over here. The first thing that we wanted to know, जो हम आपसे समझना चाह रहे थे मैम, वो ये है कि आपकी जर्नी MIT और कैम्ब्रिज जैसे इंस्टीट्यूशंस तक पहुंची, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई? लाइक व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप, व्हाट वाज द फर्स्ट thing that inspired you to take up this journey in the first place? So Radhya, I belong to Lucknow. So from a small town, I'm a small town girl. I belong to a conservative business family. We were three sisters. So बहुत मतलब my father always encouraged us कि अच्छे से पढ़ो सब कुछ. But हाँ एक माहौल घर में जो था थोड़ा conservative जरूर था. But he always he was a very hard working person. So he always advised जो करो उसको अच्छे से करो, मेहनत से करो, पूरी ईमानदारी लगन के साथ करो. So वो मेरे में बचपन से ingrained था. So I was studying at Lucknow University. बाकी जो स्टूडेंट्स थे वहीं पे अपना पढ़ते थे, वहीं की लाइब्रेरीज जाते थे, बट आई टुक दैट एक्स्ट्रा स्टेप. मुझे जो भी अपनी रिसर्च वर्क करना होता था तब लखनऊ में ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी थी, तो जितनी भी मुझे रेफरेंसिंग करनी होती थी, वो बुक्स, वो जर्नल्स इंटरनेशनल सिर्फ वहीं पे अवेलेबल होते थे. तो मैंने वहाँ की मेंबरशिप ली और आई यूज्ड टू गो देयर फ्रीक्वेंटली. Okay. सो दैट्स वेयर आई सॉ द कैम्ब्रिज कॉमनवेल्थ ट्रस्ट स्कॉलरशिप का नोटिफिकेशन था. Okay. So that's what clicked with me. And Cambridge, it's always been there in our mind कि हमारे इंडिया में भी इतने बड़े बड़े लीडर्स वहाँ के पढ़े और known names they have studied there. So एकदम से मैंने कहा यार even I should apply. Let's try. So I discussed with my father. Cambridge का नाम सुन के हर किसी को लगता है हाँ why not. So and I was always good in studies. And he knew कि मैं जिसमें अपना दिल लगाती हूँ उसको पूरे पैशन से करती हूँ. तो he also encouraged कि हाँ बेटा अप्लाई करो. Maybe his mindset what कि हाँ चलो तब देखा जाएगा. I don't know. But उन्होंने कहा encourage कि हाँ बेटा आप apply करो. So I applied only for two institutions, Cambridge and London School of Economics. Sure. And nothing else. तो क्योंकि यही top institutions थे, Cambridge I saw that scholarship वही. And Cambridge में the process is that you have to apply to the university separately and the scholarship separately. Okay. So I applied to Cambridge as for application purposes On your own. on my own. Okay. And I'm talking about 2000. Late 1999 and 2000. So you can imagine उस समय इंटरनेट आ ही रहा था. It was लखनऊ में you had to go to cyber cafes. We had a system at home and वो जो इंटरनेट था but everything, but you had to do a lot of research. इतनी चीजें free available नहीं थी. So but I did all my research कि कैसे apply करना है, पूरा process, कैसे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है. So I did everything on my own and applied to these two places. I got through Cambridge and LSE, both these institutions. Lovely. Yeah. So and then came the big question कि अब now between the two कहाँ जाएं? क्योंकि because both are very good institutions. Yes. And London School of Economics के अपने pros थे भी, जितना भी हम लोगों ने डिस्कस किया फैमिली में, फ्रेंड्स में कि कहाँ जाएं, कौन सा इंस्टीट्यूशन फाइनली जाएं पढ़ने के लिए. So people were like, ठीक है, London School of Economics it's in London. The exposure you get, it's so good for academics, especially in economics field. And my undergraduate degree is in management only. Okay. So my field, I was planning to go for a master's in management. Undergraduate degree was in management. So I wanted to pursue a master's in management. And both the institutions are very good in management field.
कैम्ब्रिज का जज बिजनेस स्कूल है जहाँ हाँ. पे where I applied for MPhil. Yes. Because I was, as I told you, I was very interested in research. मैं libraries जाती थी, used to reference a lot. So I was very inclined to go in for a MPhil degree program. So वो एक attraction था कैम्ब्रिज के research orientation, पुराना 800 years old university. Yes. एंड एक्सेलेंट यूनिवर्सिटी, लंदन का चार्म था लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए. सो बहुत सोचा, बहुत लोगों से डिस्कस किया. आपके फैमिली में पहले कोई अब्रॉड गया है पढ़ने के लिए? फर्स्ट जनरेशन. वाओ, प्लीज कंटिन्यू. हाँ, सो वही तभी तो दैट्स व्हाई इट वाज इवन मोर डिफिकल्ट कि कैसे डिसाइड करें. जो भी आगे पहुंच जाने में कोई पढ़ रहा है या कोई वहाँ है सेटल, उनसे भी बात करी. देन माय मामा, ही वाज वेरी हेल्पफुल. So he was an IPS officer, so he helped us a lot. उनके कुछ connects थे जो थे लोग बाहर, so he helped us a lot. फिर finally we decided कि नहीं, let's go to Cambridge. So that's how my journey started. Wow, lovely. So I would like to build upon this. Over the years आपने इतने सारे बच्चों को बाहर भेजा है, लेकिन जब आप खुद बाहर गए as a student, तो how was the experience, and specifically what were some culture shocks, yeah, some learnings which made that experience memorable for you? तो उसके बारे में हमें कुछ बताइए मैम. It was a wonderful experience, I'll tell you. And the thing is कि मैं उससे पहले कभी इंटरनेशनल ट्रैवल भी नहीं किया था. Wow. So मतलब it might sound dramatic, but it was straight from Lucknow to London. And that's what it was. So I landed at London Heathrow. But because as you already told and you know कि I was a Cambridge Commonwealth Trust scholar, so there जो previous year के students थे, so वो आते हैं airport receive करने के लिए. Wow. So it was very comfortable. They hired a bus and सब students को. We were 16 students who were going from India. All through Commonwealth Trust. All through Commonwealth Trust. So Okay. हमारा ticket भी was sponsored by the Commonwealth Trust. So we all traveled together. So through Air India, and हम सब साथ में थे, तो traveling सब coordinated था. It was coordinated, and when we landed, so they were there to receive us. हमारी flight शाम को 5:30 land करी. So they got us sandwiches, and पूरे रास्ते में the journey was for about 2 hours. It was very comfortable, very smooth. They were very welcoming. So it was a very good experience, and especially as I said, straight एकदम लंदन पहुंच के लगता है थोड़ा सा सबके मन में टेंशन थी. पेरेंट्स भी नहीं थे. That was the first time I stepped out of home. कभी हॉस्टल में नहीं पढ़ी, कभी कहीं नहीं, हमेशा घर में रहे. So, but it was a great learning experience, and the people there, especially at Cambridge, they were very, very good. एक तो I have noticed कि Cambridge में जो था ना, the people were very welcoming, and एक university का ना एक aura है वहाँ पे, even among the commoners there, because Cambridge it's a small town. Okay. So जो वहाँ के local भी थे, अगर आप उनको भी बताओ अच्छा we study at Cambridge University, they were like wow. मतलब वहाँ के लोगों को भी लगता था अच्छा आप Cambridge University में पढ़ रहे हो. So it was very welcoming. The people were very sweet, very supportive. जो वहाँ के natives थे, जो ये लोग थे. So the experience was wonderful there. वहाँ पे learning बहुत अच्छा experience रहा Cambridge में भी, और यहाँ पे मैं MIT भी join करूँगी कि वहाँ पे भी बहुत अच्छा, because the program was a combined program offered by Cambridge and MIT Institute. So it's called CMI. Okay. So professors from MIT used to come and teach us. So it was a joint program. But exposure, as I was telling you, कि जब लोगों को बताते थे अच्छा you are from Cambridge or MIT, so they were like fascinated by the idea. And जितने भी लोगों से वहाँ मिलने को opportunity मिली, जो networking हुई, I'll tell you, जैसे King Charles जो अभी हैं, he was Prince, he was looking after the Cambridge Commonwealth Trust scholarship. So King Charles, उन्होंने हमें एक reception दिया. He was there at Cambridge. उनसे मिलने को हम अपॉर्चुनिटी मिली. इसी तरह टॉप लोगों से जैसे स्टीफन हॉकिंग, उनसे मिलने की अपॉर्चुनिटी मिली. अमर्त्य सेन, ही वाज एट दैट टाइम ट्रिनिटी के हेड मास्टर थे. अच्छा. सो उनसे मिलने की अपॉर्चुनिटी मिली. यूएस में हिलरी क्लिंटन वाज रनिंग फॉर द सेनेटर, आई रिमेंबर करेक्टली, तो उन्होंने उनसे मिलने की अपॉर्चुनिटी मिली. इस तरह से बहुत शी केम टू एमआईटी टू गिव अ टॉक देयर. सो उनसे इंटरैक्ट करने को मिला. एंड दे वर लाइक वेरी, जैसे मैं और आप बात कर रहे हो ना, तो जैसे टॉक हुई, इसके बाद रिसेप्शन है, तो उसमें वो लोग ऐसे नॉर्मल लाइक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बात करते थे. सो दे आर सो ग्राउंडेड, सो नाइस पीपल. तो ये सब एक्सपीरियंस लाइफ लॉन्ग के हैं कि आप उनसे बात करो, मिलो, यू गेट टू लर्न सो मेनी थिंग्स. Yes, so yes. That was a wonderful experience. Lovely. I can feel that from the way you are narrating it. I can feel that energy. I can feel that vibe. Vibe is a Gen Z term.
I can feel that vibe, and I really hope that a lot of students watching this will get inspired and begin their study abroad journey if they have dreams to go abroad, cross borders, and study. So, yeah. Sure. So हमने बात करी आपकी कैम्ब्रिज एमआईटी की जर्नी की, बट हाउ डिड एड्यू अब्रॉड हैपन? Like you came back to India, you were teaching at IIM Lucknow, if I'm not wrong, and then from academia to entrepreneurship. Like idea कैसे आया? Thought कैसे आया कि let's take that leap, and how was the experience? So when I came back to India, I was with IIM Ahmedabad doing MBP's programs there. Then I was working with IIM Lucknow as professor. And in the meantime, I also did a lot of consulting work for the 6th Central Pay Commission, Government of Gujarat, a lot of work. But at the same time, जो भी जैसे अभी मैंने बोला ना हमें जाना था तो सोचना पड़ता था, बहुत लोगों से डिस्कस किया. इसी तरह जब मैं लौट कर आई, जितने भी लोग जानने वाले में जाते थे, so they used to come to me गाइड करने के लिए कि कहाँ जाएं, कैसे अप्लाई करें. So I'm doing this for 2000. So for last 25 years, Wow. actually I'm doing this and helping Wow. students. So that was earlier, it was just part of कि हाँ लोग आए और मैंने बताया. But then I realized कि जब लोग आते थे, and believe me, अच्छी फैमिली के बच्चे जिनके पेरेंट्स को अच्छा एक्सपोजर है, they have traveled abroad, even they were clueless कि कैसे अप्लाई करेंगे, कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए, because studying abroad it's very different. It's Yes. not like how we apply in India. Yeah, very different. So that's when it kicked in कि नहीं मुझे कुछ करना चाहिए to help these kids. And बहुत आते थे, confused होते थे, A, B, कई बार उनको बहुत ही गलत guidance मिलता था. So people, because if you know the industry, you know the industry, so इसमें बहुत सारे भी लोग होते हैं जो कि गाइड करते हैं कि कहीं भी चले जाए. So उसमें बच्चे अच्छे कैलिबर के होते थे, अच्छे परसेंटेज होते थे, but they used to go to a B grade or C grade university. So then I realized कि I should do something. एंड जब मैं इन बच्चों को गाइड करती थी तो मुझे बहुत अच्छा भी लगता था. तो मुझे एक अंदर से भी एक फीलिंग आई कि हाँ, दिस इज व्हाट आई लव डूइंग एज वेल. सो दैट्स हाउ एड्यू अब्रॉड केम इनटू एग्जिस्टेंस. Lovely. Great. So, because you just mentioned that बहुत different होता है study abroad, especially India में अगर आप देखो तो बहुत अलग तरीके से colleges में सीट मिलती है, वैसे abroad के colleges में सीट नहीं मिलती. There's a very different process. तो थोड़ा सा मैम आप light shed करिए on the process of studying abroad. When do we start? When is the right time? What are the steps involved? So if you could just please give us a very short, I know it's very complicated, but if you could give us a summary, so it will really help. So start जो करना चाहिए, the earlier you start the better it is. और आइडियली आपको 2 साल पहले प्रोसेस शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जो एप्लीकेशन प्रोसेस है एक्चुअल वो 1 साल इन एडवांस चलता है. सो फॉर स्टूडेंट्स हु वांट टू गो इन सितंबर 2025 इनटेक, ऑलरेडी उन्होंने लास्ट ईयर अपना प्रोसेस शुरू कर दिया है. और अब जिनको 2026 फॉल के लिए जाना है उनका प्रोसेस ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाला है. ये तो एप्लीकेशन प्रोसेस की बात है, क्योंकि यूकास खुल गया, तो उसके सबमिशन अगस्त सितंबर में शुरू होंगे. सिमिलरली विद कॉमन ऐप यूएस की एप्लीकेशंस का. इसी तरह जो मास्टर्स के लिए जाना चाहते हैं, राउंड 1 राउंड 2 एप्लीकेशंस विल स्टार्ट इन अगस्त सितंबर. एंड द अर्लियर यू अप्लाई द बेटर. हाँ, और ये तो अर्लियर यू अप्लाई द बेटर, क्योंकि राउंड 1 जो मास्टर्स के लिए जा रहे हैं उनके लिए राउंड 1 में पूरी सीट्स हैं. राउंड 2 में जब अप्लाई करेंगे तो मान लो 20% लोगों को सीट्स चले गए, तो आपके पास 80% सीट्स बचे. सिमिलरली इट गोज ऑन, राइट, राउंड 4 राउंड 5 तक मास्टर स्टूडेंट्स के लिए. इवन फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इट्स लाइक कि ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज है, उनकी डेडलाइन इस अक्टूबर में होती है. तो आप सोचो जिसको सितंबर एंड में पढ़ने जाना 2026 पे, अक्टूबर उनकी डेडलाइन है अप्लाई करने की. सो आपको और ये तो एप्लीकेशन डेडलाइन की जरूरत है, और उनका जो प्रोसेस इट्स वेरी डिफरेंट. उसके लिए भी जो आपको चीजें प्रिपेयर करनी हो तो उससे पहले करनी है ना. तो व्हाट टाइप ऑफ, हाँ, आई विल टेल यू कि व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स. जैसे आप फॉर एग्जांपल अगर आप करना चाहते हो बीएससी इन इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहना चाहते हो, ओके, सो देन योर फर्स्ट स्टेप इज कि यू नीड टू आइडेंटिफाई कि आपको कोई एग्जाम तो नहीं देने उसके लिए. ओके, तो जैसे यूएस में है अभी तक बिकॉज ऑफ कोविड सैट फ्री कर रखा था उन्होंने. सैट या एसीटी कोई भी एग्जाम आपको नहीं देना था. बट अब जो है 26 ऑनवर्ड सारी यूनिवर्सिटीज ने सैट फिर से कंपल्सरी कर दिया. तो सबसे पहले तो आपको एसएटी और एसीटी स्कोर देना है. तो अगर अब बच्चे ने 2 साल पहले से प्लानिंग नहीं शुरू करी है तो उसने दिया ही नहीं होगा एसएटी और एसीटी एग्जाम, तो वो कर ही नहीं पाएगा, अप्लाई नहीं कर पाएगा. इसी तरह यूके में भी इस साल से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो है, जैसे कि यूसीएल है, वॉरिक है, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में तो हमेशा से एंट्रेंस था, यूसीएल, वॉरिक, एलएसई, इन सब ने भी इस साल से
एंट्रेंस एग्जाम इंट्रोड्यूस कर दिया है Okay. कुछ प्रोग्राम्स Their own entrance exam. हाँ Their नहीं own. नहीं इट्स नॉट देयर ओन, ऑक्सफोर्ड के अपने होते हैं, बट पियर्सन के टेस्ट हैं, अच्छा. एप्टीट्यूड टेस्ट हैं, वो उन्होंने इस साल से इंट्रोड्यूस करे हैं। All right. बाकी कुछ स्ट्रीम्स में जैसे लॉ है, मेडिकल है, उसमें पहले से भी थे। Okay. तो एक तो आप जब आइडेंटिफाई करते हो आपको क्या पढ़ना है, तो फर्स्ट थिंग इज कि उसके लिए क्या आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत है क्या। सो इट्स नॉट लाइक द एंट्रेंस एग्जाम दैट वी हैव इन इंडिया, जैसे जी और इस टाइप का नहीं होता। दीज आर एग्जाम्स, उसमें जो स्कोर आता है यू हैव टू सबमिट दो स्कोर्स। All सो right. इट्स नॉट लाइक अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम आज से कि एक रैंककारी है इंडिया में जैसे होता है। तो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सैट का मेंशन किया, सो द एग्जाम इज आउट ऑफ 1600, हर स्टूडेंट को अपने मार्क्स मिलते हैं, क्वांट में मिले, वर्बल में मिले, एंड देन यू सबमिट द स्कोर टू द यूनिवर्सिटी, एंड उसको अगर उनको अगर स्कोर ठीक लगता है देन दे प्रोसीड विद योर एप्लीकेशन। सिमिलरली ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज के अपने एग्जाम्स होते हैं, पियर्सन जनरली पियर्सन या कैम्ब्रिज वो एग्जाम्स हेल्ड कराता है। सो इंडिया में इनके सेंटर्स होते हैं, नॉट एन इशू, बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से कर सकते हैं, अपने सेंटर्स है वहाँ पे दे सकते हैं एग्जाम्स। लार्जली द एग्जाम्स आर ऑनलाइन और लार्जली जो पैटर्न होता है एग्जाम्स का इट्स इंग्लिश एंड मैथ्स। कुछ सब्जेक्ट्स वाइज होते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो भाई ये सब चीजें देखने के लिए ना कि आपको कौन सा एग्जाम देना है, फिर उसकी प्रिपरेशन करनी है। सो दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि 2 साल इन एडवांस आपको प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए, बिकॉज यू नीड टू आइडेंटिफाई कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी जाना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने जाना है, फिर उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो आपको रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए यू नीड गुड 1 ईयर। तो अगर मैम मैंने एग्जाम पहले दे दिया तो क्या वो स्कोर्स वैलिड रहेंगे? हाँ, वेरी गुड जब तक क्वेश्चन। मैं द स्कोर इज वैलिड, लाइक एसएटी की स्कोर इज वैलिड फॉर 5 इयर्स। और जो या एंड जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जाम्स होते हैं उनकी स्कोर इज वैलिड फॉर 2 इयर्स। ये तो जो ब्रॉड वाइडली एक्सेप्टेबल एग्जाम्स है बोलूंगी उनके हैं, बट कुछ एग्जाम्स होते हैं जैसे लॉ के लिए एलनैट देना है, वो उसी साल पहले देना होता है, तो जो 26 के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो अभी देंगे। अच्छा. ओके, तो इस टाइप से इट डिपेंड्स। वही मैं कह रही हूँ ना कि एक्चुअली इट्स नॉट कि एक चीज आपको पता है वही सब यूनिवर्सिटीज में या वही सब कोर्सेज के लिए एप्लीकेबल होगी, सो इट्स वेरी डिफरेंट। सो यू हैव टू फर्स्ट डिसाइड कि किस कंट्री जाना है। कंट्री में भी मिक्स रख सकते हो आप, बट कौन सी यूनिवर्सिटी कौन से कोर्स के लिए जाना है, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अगर आपको कोई एग्जाम देना है तो वो, प्लस क्या है, वो लोग पूरा ओवरऑल प्रोफाइल देखते हैं स्टूडेंट का। सो वो होता क्या है ना कि आप प्रोफाइल एक दिन में नहीं बना सकते अपना। इनफैक्ट हम हमारे साथ तो बच्चे जुड़ते हैं क्लास 9 से जुड़ जाते हैं। सो बिकॉज यू नीड टू शो कि आपको अपने क्लास 9 ऑनवर्ड्स क्या क्या किया है। दैट्स व्हाई आइडियली तो बच्चों को क्लास 9 ऑनवर्ड्स शुरू कर देना चाहिए, बट अगर मान लीजिए किसी रीजन की वजह से नहीं कर पाए तो अभी आप इवन इफ यू स्टार्ट इन क्लास 11 इवन देन इट्स गुड, बट हमारा सजेशन यही रहता है यू स्टार्ट इन क्लास 9। अगर आपको अंडर ग्रेजुएट डिग्री के लिए जाना है, मास्टर्स डिग्री के लिए जाना है, देन यू शुड स्टार्ट अपने फर्स्ट ईयर से आप शुरू कर दो, सो दैट अपना प्रोफाइल उस तरह से बनाओगे, आप अपने टेस्ट उस हिसाब से दोगे। फिर आपको जो प्रोसेस की बात है उसमें और बहुत सारी चीजें होती हैं, आपको एसओपी लिखना है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस चाहिए, कुछ इंटर्नशिप्स दिखानी होती हैं, सो देयर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज दैट यू नीड टू डू एंड शो, सो दैट्स व्हाई यू अर्लियर यू स्टार्ट द बेटर इट इज। श्योर। तो कई पेरेंट्स आपके पास काउंसलिंग के लिए, स्टूडेंट्स आते होंगे गाइडेंस के लिए, एंड आई एम श्योर उनके तरह तरह के कंसर्न्स होते होंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ द पेरेंट्स हैव अ गर्ल चाइल्ड तो सेफ्टी हो सकता है एक क्वेश्चन आता हो कि बाहर जाएंगे बच्चे कितना सेफ है। कभी कभी हो सकता है मनी इज अ बिग कंसर्न दैट कम्स अप कि कैसे फंड्स अरेंज करें, पेरेंट्स कैसे मैनेज करें। तो ऐसे केसेस में आप कैसे हेल्प करते हो उन पेरेंट्स को? तो हम एड्यू अब्रॉड में वी आर अ 360 degree solution. We provide a 360 degree solution right from university selection, college selection till the end, till the visa process and everything. तो हम उसको हर स्टेप में हेल्प करते हैं बच्चों को। और आपका जो पहला पार्ट था क्वेश्चन था सेफ्टी का, तो सेफ्टी इट्स वेरी सेफ टू स्टडी अब्रॉड। एंड आपको आई वेंट इन 2000 एंड एज आई टोल्ड यू, मतलब मैं बहुत कंजर्वेटिव फैमिली की थी, 3 सिस्टर्स, तो यू कैन इमेजिन गर्ल्स थे घर में, तो बहुत प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट था। तो उस एनवायरनमेंट से निकल के मैं बाहर गई, बट आई रियलाइज कि पीपल वर वेरी वेलकमिंग एंड इट्स वेरी सेफ। एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन एज वेल, यू आल्सो नीड टू टेक केयर ऑफ थिंग्स कि भाई हाँ क्या नहीं भी करना चाहिए, बिकॉज थोड़ा कल्चरल डिफरेंसेस तो है ही है टू बी ऑनेस्ट, बट वो तो करना है, बट इट्स ओवरऑल इट्स वेरी सेफ, वेरी कंफर्टेबल। तो कोई और गर्ल्स को ऐसा इशू नहीं आता है। I mean, you can say that even 25 years later. Even now 25 that years later. there's been some time, but even today this stands. ओके, सो फाइनेंसेस के लिए एक तो स्कॉलरशिप्स बहुत ज्यादा अच्छी अवेलेबल है। जैसे मैं कैम्ब्रिज कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के थ्रू गई थी,
तो उसमें मतलब एयर टिकट, रिटर्न एयर टिकट से लेकर लिविंग, ट्यूशन फीस, एवरीथिंग वाज पेड फॉर। इसके अलावा यहाँ तक कि मुझे सेटलिंग अलाउंस मिला था, क्योंकि आप नई कंट्री में जाते हो, यू नीड वो लिव्स एंड ऑल दैट स्टफ, तो सेटलिंग अलाउंस मैं बाद में पीएचडी में कंटिन्यू किया, तो उसके लिए भी बहुत सारे बर्सरी और ग्रांट्स मिलते हैं। Okay. सो एडिट फोटोकॉपी में मेरी रिसर्च जो थी इंडियन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री पे थी। Okay. तो आई यूज्ड टू कम टू इंडिया फॉर लॉट ऑफ कॉन्फ्रेंसेस, नासकॉम की होती थी, बाहर भी मैं ट्रैवल करती थी। Okay. मेरे एक सेकंड सुपरवाइजर फिनलैंड में थे, तो मैं वहां भी जाती थी उनके पास। सो ट्रैवलिंग, रिसर्च के लिए आपको जो ट्रैवल करना है, फोन कॉल्स करनी होते थे बहुत सारे, कभी कभार टेलीफोनिक इंटरव्यूज होते थे। सो बहुत सारे खर्चे आते हैं, तो उसके लिए बहुत सारी बर्सरीज, ग्रांट्स, फोटोकॉपिंग, बाइंडिंग थीसिस की, बहुत सारे, तो एवरीथिंग वाज पेड फॉर। सो अगर तो आपको कोई ऐसी स्कॉलरशिप मिल जाए, दैट्स तो वेरी गुड, अगर ऐसा हो जाए। इवन अगर ऐसी नहीं भी मिलती है, तो इसके अलावा भी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं। सीसीटी के अलावा जैसे गेट्स है, ये सब तो फुली फंडेड है। इसके अलावा बहुत सी होती है जिनमें ट्यूशन फीस में सपोर्ट मिलता है, कुछ में लिविंग एक्सपेंसेस में मिलता है, तो इस टाइप के आप ग्रांट्स और स्कॉलरशिप्स के लिए कर सकते हो। अगर मान लीजिए आपको ऐसा कुछ नहीं मिलता है, नाउ तो देयर आर सो मेनी लोन्स अवेलेबल, लोन ऑप्शंस अवेलेबल, सो इट्स वेरी कंफर्टेबल। आप लोन मिल जाते हैं, लोन आपको मतलब पब्लिक बैंक से तो मिलते ही मिलते हैं, प्राइवेट बैंक, एनबीएफसीज, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल। इट्स जस्ट कमिंग अप अगेन एंड अगेन फॉर मी। स्टडी अब्रॉड के प्रोसेस पे तो हमने चर्चा करी, लेकिन जो स्कॉलरशिप है, कॉमनवेल्थ ट्रस्ट स्कॉलरशिप, इट्स फैसिनेटिंग मी अ लॉट कि उसके प्रोसेस में, क्योंकि आपने कहा आपने अलग अलग अप्लाई किया था, यूनिवर्सिटी में अलग अप्लाई किया, स्कॉलरशिप में अलग, तो आई एम श्योर उसका भी एक रिगरस प्रोसेस रहा होगा। तो लाइक व्हाट देयर इंटरव्यूज, डिड यू क्वालिफाई, रिटन एग्जाम, हाउ वाज इट, थोड़ा सा अगर आप बता दें। In fact, it was a 3-step process. So University of Cambridge का ऐसा है कि there's a university and then it's a college system. There are some colleges there. So you have to be accepted by the university and किसी कॉलेज को भी आप एक्सेप्ट करना होता है। मैंने यूनिवर्सिटी को अप्लाई किया एंड प्लस कॉलेज में अप्लाई किया कि ये कॉलेज A1, 2, 3 मेरी चॉइसेस हैं कि ये मुझे एक्सेप्ट करें। ओके, सो 2 स्टेप हो गए। फिर स्कॉलरशिप का तो अलग से पूरा सेपरेट, क्योंकि इट्स अ डिफरेंट बॉडी। यस, तो सीसीटी स्कॉलरशिप यहाँ पे नेहरू ट्रस्ट इंडिया में एडमिनिस्टर करती है, 3 मूर्ति भवन में उसका ऑफिस है। बट उनकी एप्लीकेशन अब तो ऑनलाइन निकल आती है। सो ऑनलाइन यू अप्लाई फॉर द एप्लीकेशन, इट्स फॉलोड बाय एन इंटरव्यू। माय इंटरव्यू वाज टेकन बाय डॉक्टर मनमोहन सिंह एंड क्योंकि नेहरू ट्रस्ट के थ्रू था एंड राजीव गांधी फाउंडेशन के थ्रू था, तो सोनिया गांधी जी उन्होंने हमें रिसेप्शन दिया एंड इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। सो स्कॉलरशिप का जो प्रोसेस है, यू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप, देयर आर फ्यू क्वेश्चंस, फ्यू एसेज दैट दे आर वांट यू की it varies from scholarship to scholarship कि क्या क्या होते हैं। sometimes they want to know about you, what are your future plans, what are your career aspirations, इसके around कुछ essays होते हैं। so you have to apply for the scholarships, then followed by an interview. All right. When you clear that interview, then you get so I mean, if we have to apply, like fill a form, and then I believe there would be a very tough procedure for shortlisting, because they would receive so many applications. And then आपने बताया इंटरव्यू ले रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो उस एप्लीकेशन और उस इंटरव्यू के बीच का जो रास्ता है would be a very rigorous selection and filtration process, I believe. Very very nice, very fascinating to know. And again, scholarship process, scholarship की भी application they start 1 year in advance. Okay. So जिन बच्चों को 26 के लिए जाना है, उनकी स्कॉलरशिप जैसे शिवलिंग स्कॉलरशिप है, वो खुल गई है। Okay. शिवलिंग इज अगेन अ वेरी प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप। इसी तरह रोड स्कॉलरशिप है फॉर ऑक्सफोर्ड, वो खुल गई है। सो दे आर ऑल ओपन, आपको अभी अप्लाई करना चाहिए। हर स्कॉलरशिप का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। शिवलिंग में दे वांट वर्क एक्सपीरियंस, किसी में रिसर्च एक्सपीरियंस चाहिए, तो इट वेरीज फ्रॉम स्कॉलरशिप टू स्कॉलरशिप। एंड इंटरव्यू किसी में होता है, किसी में नहीं होता, इट वेरीज। बट स्कॉलरशिप्स क्योंकि खुल जाती है 1 साल इन एडवांस, और उसकी प्रिपरेशन हो सकता है आपको और पहले से करनी हो। सो ये पूरा प्रोसेस जो है, आप जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। Great. And all it requires is a good strategy to do that. Okay. It's very difficult, as you said, कि बहुत सारे बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, बट होता क्या है कि बहुत से बच्चे लास्ट मिनट रियलाइज करते हैं कि चलो हम इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर देते हैं। बट इफ यू प्लान इन एडवांस एंड इफ यू टेक एडवाइस फ्रॉम गुड कंसल्टेंट, गुड काउंसलर, ये पॉइंट कार्ड। So if you plan in advance and you strategize, then it's very much possible. भाई हम आप जैसे स्टूडेंट्स तो हैं जिनको मिल रही है ना वो स्कॉलरशिप। So it's all about planning and strategizing and starting well in advance. आपने अपने सारे एसेस खुद लिखे थे स्कॉलरशिप वाले? मैंने खुद लिखे थे। तब तो गूगल भी नहीं था, चैट जीपीटी तो भूल ही जा। मतलब खुद ही लिखे।
तो जैसे बच्चे पढ़ने जाते हैं बाहर, स्टडी अब्रॉड का प्रोसेस ही फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा रिग्रेस है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एंड देन बच्चे बाहर जाते हैं, वहां पे लाइफ और चेंज हो जाती है। आपके अकॉर्डिंग क्या चैलेंजेस है जो बच्चों को आते हैं इस प्रोसेस में या वहां पहुंचने के बाद? एनी, प्लीज फील फ्री टू शेयर एनीथिंग दैट कम्स टू योर माइंड। प्रोसेस तो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, अगर आपने टाइम से शुरू किया, फॉलो किया, तो कोई बहुत चैलेंजेस नहीं है। ठीक है। इट्स ऑल लेड डाउन, आपने करा, इट्स वेरी कंफर्टेबल प्रोसेस। वहां पहुंच के थोड़ा कल्चरल शॉक तो लगता ही है, बट ये है कि अगर आप जा रहे हो, आपने थोड़ा सा कंट्री के बारे में वीडियोस देख लिए, पढ़ लिया, आजकल तो बहुत अच्छा एक्सपोजर है बच्चों को, तो मैं कहूँगी कल्चरल शॉक भी बहुत नहीं आता। कभी कभार फूड का थोड़ा सा लोगों को आ जाता है, जैसे अब बच्चे क्या है, सिर्फ यूके यूएस नहीं जा रहे, हांगकांग भी जा रहे हैं, चाइना भी जा रहे हैं, जापान भी जा रहे हैं, उनके फूड हैबिट्स हमसे बहुत डिफरेंट है, तो वो भी थोड़े से डिफरेंट लगेगा। तो वो चीजें, बट स्टूडेंट्स आर गुड लर्नर, बहुत जल्दी अडाप्ट कर लेते हैं। सो आई थिंक इट्स वेरी कंफर्टेबल, नॉट कोई इतना नोटेबल चैलेंजेस हाँ नहीं चैलेंजेस नहीं आते। बहुत इंडियंस भी पढ़ रहे हैं। हाँ, मैं बस ये जरूर कहना चाहूंगी, जनरली स्टूडेंट्स की टेंडेंसी क्या होती है कि इंडियंस एक साथ स्टिक अराउंड करने लगते हैं, तो वो अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज वहां पे आप गए हो तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट लर्निंग एक्सरसाइज इज कि जो आप वहाँ पे नेटवर्क बना रहे हो, एंड जब आप दूसरे लोगों के साथ, दूसरे कल्चर के स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हो, आप उनके कल्चर के बारे में भी जान रहे हो। आपको ये समझ में आता है चाइना में लोग क्या कर रहे हैं, आपको ये समझ में आता है अफ्रीका में लोग क्या कर रहे हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, या मिडिल ईस्ट में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। तो कल को आप अपना शुरू करना चाहते हो, देन यू कैन, एक तो वो नेटवर्क भी आपको काम आएगा, प्लस आप उन जगहों की जो भी डिमांड्स हैं या उसको आप केटर भी कर सकते हैं। मैंने भी ये टेंडेंसी देखी है, रीजनलिज्म थोड़ा सा आ जाता है। ऑलराइट, तो वी हैड अ ग्रेट फ्रूटफुल डिस्कशन, बट जाते जाते मैम एक और सवाल है जो हम आपसे पूछना चाहेंगे। वन एडवाइस दैट यू वुड गिव टू योर यंगर सेल्फ, योर 20-year-old self, for example, one advice that you would give them with all the wealth with all the wealth of learning experiences and the pearls of wisdom that you have now, what would be one advice that you would give to yourself when you were 20 years old? See, whatever I did, I always as a family we used to sit together and discuss. Okay. मैंने जैसे शुरू में ही बोला कि जब मैंने देखी है स्कॉलरशिप, तो मुझे लगा करूँ ना करूँ, so I discussed with my father, with my mother. तो my mother, she is also very learned person, मतलब उस टाइम पे भी she did MA in history, she was teaching, तो उनका भी काफी contribution रहा मेरी लाइफ में, आज भी है। So फादर भी बहुत हार्ड वर्किंग थे, तो उन्होंने मुझे ये चीज सिखाई, हार्ड वर्क की। तो मैंने हमेशा, आई फील कि एक क्या ब्लेस्ड कि वो फैमिली में ऐसे मैं बॉर्न हुई, दूसरा कि मैंने हमेशा उनकी बात सुनी। इट वाज ऑलवेज अ म्यूचुअल डिसीजन कि हाँ ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इवन माई सेल्फ और जो और भी किड्स हैं मेरी, हमेशा उनको एडवाइस ये होगी कि अपने पेरेंट्स की बात सुनो। Whatever they are saying, whatever they are doing is for your best interest. So they bring a lifetime experience. तो वो जो बात कह रहे हैं ये आपके फायदे के लिए है, बिकॉज किसी का भी, कोई भी हो, आपका फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, किसी का भी इतना इंटरेस्ट नहीं होगा आप में जितना आपके पेरेंट्स का है। वो आपका हमेशा अच्छा भला ही चाहेंगे। सो लिसन टू योर पेरेंट्स, और कभी आपको मान लो कुछ और करना है, देन ट्राई एंड कन्विंस देम। कभी भी डोंट टेक एनी डिसीजन इन हेस्ट कि नहीं पेरेंट्स नहीं मान रहे, हम ये कर लेते हैं। सो मुझे इसका लाइफ में बहुत बेनिफिट मिला। तो मैं यही बच्चों को भी एडवाइस दूंगी कि ऑलवेज लिसन टू योर पेरेंट्स एंड और वर्क हार्ड फॉर वट एवर यू ड्रीम फॉर। एनीथिंग इज पॉसिबल, वट एवर यू ड्रीम फॉर यू कैन अचीव दैट, सो वर्क हार्ड फॉर दैट। Very nice. Thank you so much, ma'am, for giving us your time and coming here with us, sharing your thoughts. I believe it will be helpful to the people watching, parents, students, aspirants alike. And thank you so much again, ma'am, for coming. Thank you so much. So with this, we conclude today's episode. Please stay tuned, and we will be coming up with very interesting and helpful topics here on. And please do like, comment, subscribe to our channel. You can let us know in the comments if you have any ideas, if you have any feedback or any other topics that you would like us to take up. So we are all ears, we are here for you, and आपके जर्नी का पार्ट बनने में हमें बहुत खुशी मिलेगी अगर हमारे एक्सपीरियंसेस शेयर करके अगर आपको कुछ गाइडेंस मिलती है, मदद हो जाती है, तो I mean हमारा पर्पस फुलफिल हो जाता है। So please stay tuned, let us know your feedback. Thank you so much for watching. Goodbye.